लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I'm Kaushik Rai with my co-anchor Anand Srivastav. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ करेंगे चर्चा। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे चुनाव तैयारियों के बारे में। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राजनीतिक विश्लेषक रोशन गौड़ जी को। रोशन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Headlines: Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi begins Lok Sabha election campaign from Meerut, Uttar Pradesh. Opposition India Alliance organizes Maha Rally at Delhi's Ram Leela Maidan. In Arunachal Pradesh, 10 BJP assembly candidates declared elected unopposed. वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। विपक्ष इंडी गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के 10 विधानसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की। श्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत को विकसित राष्ट्र तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो 25 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा और मध्यम वर्ग देश की प्रगति को गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है और देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में कई अवसर मिल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया में भारत की अधिक साख है और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कारण बड़े भ्रष्ट लोग सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में ऐसे कई काम किए गए हैं जिसे असंभव माना जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद देश को परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री ने नए भारत की तस्वीर पेश की है। The opposition Indian National Developmental Inclusive Alliance, India Alliance, today organized a Maha Rally at Delhi's Ram Leela Maidan to protest against many issues, including the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Congress President Mallikarjun Kharge alleged that central government is misusing institutions to threaten opposition parties. He also alleged that there is no level playing field in this election. Mr. Kharge said this election is for saving democracy and constitution and opposition must fight unitedly. Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, AAP leader and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and jailed Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's wife Sunita, JMM leader and Jharkhand Chief Minister Champai Soren, former CM Hemant Soren's wife Kalpana, CPIM leader Sitaram Yechuri, CPI General Secretary D. Raja, Shiv Sena UBT leader Uddhav Thackeray, NCP SCP leader Sharad Pawar, RJD leader Tejaswi Yadav, National Conference leader Farooq Abdullah, PDP leader Mehbooba Mufti, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav, TMC leader Derek O'Brien attended the Maha Rally. This was the first public meeting of the Indie Bloc leaders since the coalition was founded in June last year in Patna. The Bharatiya Janata Party has hit out at the opposition Indie Bloc rally at Ram Leela Maidan, saying it is not a Save Democracy rally as projected, but a Save Family and Hide Corruption rally. अरुणाचल प्रदेश में कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायकों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 19 अप्रैल को होगा। In Tripura, out of the 793 polling stations, 58 polling stations will be managed by all-women polling personnel in Tripura West parliamentary seat. In this connection, around 400 to 500 women polling personnel are being imparted mock poll training at the Sishu Vihar school in Agartala. The women-managed polling stations will be called as model polling stations. In the single and first phase of general elections in Tamil Nadu, out of the 1,085 valid nominations, 138 candidates have withdrawn, while 950 candidates are in the fray in the final announcement. In the Vilavancord by-election, 10 candidates are in fray. In the 39 constituencies, 874 men and 76 women will contest the election. In Karur, a maximum of 54 candidates are in fray. In Nagapattinam, 9 candidates are contesting. A total of 6,23 lakh voters will exercise their franchise in 68,144 polling stations on the 19th of April in a single phase. The by-poll for the Vilavancord Assembly constituency will also be held on the same day. More than 10 lakh first-time voters and more than 6 lakh voters above the age of 85 will also exercise the power of voting. The Election Commission has been strictly enforcing the Model Code of Conduct with 39 general observers, 20 police observers and 58 expenditure observers in the state. The public has been encouraged to use the C-Vigil app and the 1950 help desk number for poll-related campaigns. In Assam, 35 candidates are in the first phase of Lok Sabha polls in the state for 5 seats. One candidate withdrew nomination yesterday for the Jorhat seat. The BJP is contesting in all 5 seats. The Congress has fielded candidates to 4 seats while supporting Ahom Jatiya Parishad at Dibrugarh. Our Guwahati correspondent reports that for the BJP, Union Minister Sarbananda Sonowal, MP Pradhan Barua, Kamakya Prasad Pasha and Tapan Kumar Gogoi, MLA Ranjit Datta are in the fray. Congress MP Gaurav Gogoi, former MLA Rosalina Turkey and Uday Shankar Hazarika are contesting. The president of Ahom Jatiya Parishad, Lurenjyoti Gogoi, is contesting from the Dibrugarh seat. भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भीलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए दामोदर अग्रवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा ने आज लोकसभा चुनावों के लिए अपनी 9वीं सूची जारी की। जम्मू कश्मीर के जम्मू रियासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 372 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी समेत अन्य संभावित खतरों को देखते हुए कल से यहां सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। And we have in the studios today senior political analyst with us, Roshan Gaurji. Thank you very much for joining us in the studios today, Roshanji. First of all, the Honorable Prime Minister has today launched the Bharatiya Janata Party's election campaign. What's your reaction to that? देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें कुल 27 सीटें आती हैं और 27 में जो पहला चरण है उसमें से 8 आती हैं। 2014 में इस क्षेत्र में 27 में से 24 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन 19 में थोड़ी सी कम हो गई, 19 सीटें जीती थी। तो इसलिए फोकस है प्रधानमंत्री का कि यहां से जो हमारी सीटें कम हुई थी वो वापस हम गेन कर पाए, क्योंकि जो टारगेट रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 74 सीटें बीजेपी लड़ रही है, तो 74 सीटें कैसे बीजेपी को वापस मिले, क्योंकि जो 2014 की सीटें थी उसमें से 2019 में सीटें कम हुई थी, 62 सीटें रह गई थी। तो उसको इस बार टारगेट रखा कि ज्यादा करना, इसलिए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसलिए ये जो रैली हुई है, ये पहला उत्तर प्रदेश के लिए अभियान, चुनाव अभियान का आरंभ था और 27 सीटों पर फोकस है। और ये 27 में से 27 कैसे जीते जाएं, क्योंकि इस बार आरएलडी भी बीजेपी के साथ आई है। 2014 में साथ थी, लेकिन 2019 में नहीं थी। तो इसलिए ये रैली इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी चुनौती देखते हैं आप विपक्ष की, जो कि प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक साथ, आज महारैली का भी आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात करें, कितनी चुनौती? देखिए,
उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है। और कांग्रेस तो भी आपने देखा पिछली बार केवल एक सीट जीत पाई थी, इस बार सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो मेल है वो एक ऐसा कह सकते हैं कि वो एक नेचुरल कॉलिशन नहीं है, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा उनका कॉलिशन में उनकी सीटें कम हुई थी, वोट परसेंटेज भी घटा था। तो इसलिए जो माहौल है इस वक्त अब की बार 400 पार का, वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उससे वो बाहर आई है। फिर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बाबा विश्वनाथ का जो, तो इन सब मामलों से ऐसा लगता है वहां पे कि बीजेपी के फेवर में माहौल है। आज रामलीला मैदान में दिल्ली के बहुत बड़ी महारैली का आयोजन किया गया, जैसा कि हमने अपनी हेडलाइंस में भी और स्टोरी में भी बताया कि विपक्ष के हर बड़े नेता ने ममता बनर्जी को छोड़ दे तो उसमें हिस्सा लिया। भाजपा ने उसको कहा है कि ये परिवार को बचाने के लिए रैली है, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए रैली है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अगर हम 2024 का चुनाव जीतते हैं तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बिल्कुल देखते हैं। देखिए, पहले रैली यहाँ इंडिया की हुई दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसके बाद प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री ने आपने पूरा भाषण सुना भी होगा, जैसे आपने जिक्र किया कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर बहुत ही फोकस किया कि हम भ्रष्टाचार को छोड़ेंगे नहीं और आगे भी लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। उन्होंने जितना पैसा लिया है हम वापस निकालेंगे और जनता को देंगे, ये उन्होंने बात कही। जो ये आज रामलीला मैदान में जो रैली हुई है जिसमें आपने कहा कि ममता नहीं आई, उनके प्रतिनिधि डायरेक्ट आए थे, लेकिन आप देखिए कि जितने लोग इसमें थे वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है, गोवा में चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में अलग है। और सीपीएम और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां ममता बनर्जी अलग है। कांग्रेस में कांग्रेस और सीपीएम अलग एक साथ जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन की रैली जो दिल्ली में हुई है, ये ऐसा लगता है कि ये एक मन से एक साथ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए एक साथ आए हैं। तो अगर जो वहां भीड़ भी जो हम टीवी में देख रहे थे ठीक ठाक भीड़ थी, लेकिन सवाल लोग वही उठा रहे थे कि ये तो आपस में राज्यों में लड़ रहे हैं, तो फिर लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? अगर ये पूरी रैली होती कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, तो शायद एक माहौल जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखा। क्या ये विवशता नजर आ रही है विपक्ष की? क्योंकि अगर समूह में नहीं लड़ेंगे तो और बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें जो डर है वो है कि जिन जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनका जेल जाने का खतरा है। तो इसलिए ये एकजुटता उन्होंने दिखाई, कम से कम चुनाव तक तो ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है। इसलिए वो लोग शायद बार बार कह रहे हैं कि हम जो है जो सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। Right, and we are slipping to a short break. We'll be back very shortly. Lok Nirnay 2024, a special program on the general elections, every evening at 7 and repeat broadcast at 9:30 p.m. on Akashvani Gold. Updates of election activities, insights from regions and constituencies, expert opinion and analysis. In the world's largest festival of democracy. Stay tuned to Lok Prasarak ke saath, Lok Nirnay 2024. Welcome back, and from the studios where we are talking about the national politics in relation to the 18th Lok Sabha polls, and which are just now, Anand, you will agree, are just 19 days away. If we can say, the first phase, and already lots and lots of political activities are going on, and time for us to go to the beautiful state of Goa, and we'll be going to Goa in just a short while from now. And meanwhile, I'd like to ask Roshanji that you made a very important and interesting point that in some states the Congress and the left, that is, if you look at it, the CPIM are fighting together. But if you look at a particular state where the lone CPIM, lone leftist state, that is Kerala, the Congress and the CPIM are at opposite ends, and this time it looks like the Bharatiya Janata Party could make inroads. But meanwhile, we have in line Nagesh, our Panaji correspondent from Goa.
Good evening, Nagesh. Please can you give us the details of the parliamentary constituencies Goa along with their geographical location and the poll date? Good evening, sir. Goa has two parliamentary constituencies. Goa being small in size has North Goa parliamentary constituency and the South Goa parliamentary constituency. The North Goa parliamentary constituencies has 20 assembly constituencies. The entire 5 talukas of North Goa along with one assembly segment of the South Goa taluka are located in the North Goa parliamentary constituencies, whereas the remaining 20 assembly constituencies of the 7 talukas comprise the South Goa parliamentary constituencies. Goa incidentally goes to the poll in the third phase, with 7th of May being the poll date. Goa has this hot season commencing early April. So in that hot season, the people of Goa will come out in large numbers, it is expected, as Goa is considered to be a good poll laboratory by the Election Commission, wherein the turnout of the voters, that is the electors, is pretty high. And so far as the electoral strength is concerned, the Chief Electoral Officer of Goa State has made arrangements for 1,174 polling stations for to accommodate 11,40,000 odd voters. And in that context, it is very important to note that in the South Goa parliamentary constituency, there is a sizable chunk of the minority votes which can make a crucial deciding factor. And so far as the North Goa parliamentary constituency is concerned, it will be mostly concentrated on the Bhandari community in the Hindu region, which will decide the fate of the candidate. Right. Can you also tell us the details about the candidates who have been announced by various parties in Goa? Now, so far as the candidates of various parties are concerned, the Bharatiya Janata Party has announced both the candidates for the North Goa parliamentary constituency and five-time winner in the Union Minister, Mr. Sripad Naik, contesting from North Goa parliamentary constituency, whereas the BJP has come up with a surprise in the South Goa parliamentary constituency, giving ticket to a local industrialist wife, Srimati Pallavi Dempo, in South Goa. So far as the local regional party in the Revolutionary Goans Party is concerned, they have also announced their two candidates for the North and the South parliamentary constituency. But the biggest surprise is the Indian National Congress, in spite of putting out so many lists of candidates, Goan candidates seem to be missing in in all the lists, and it is expected that the names will come fast. Thank you, Nagesh. Thank you for joining us from Panaji. Thank you. Roshanji, you heard about the situation in Goa, only 2 parliamentary seats, but a very important state politically. And what's your take on the situation in Goa? देखिए, गोवा की 2 सीटें हैं। 2014 में दोनों बीजेपी के पास थी। 19 में एक सीट यानी साउथ गोवा वो कांग्रेस के पास चली गई। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक कोलिशन हुआ है कि वहां केवल कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा में आम आदमी पार्टी की 2 सीटें जीती थी और उनका करीबन 6% वोट था। तो वो बीजेपी के खिलाफ वहां पर एकजुट हो रहे हैं कि अगर वो दोनों का वोट परसेंटेज मिलता है तो क्या पता उनको सीट मिल जाए। लेकिन बीजेपी ने बड़ा सरप्राइजिंगली वहां पर एक कैंडिडेट जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पल्लवी डेम्पो, उनको उतारा है। तो उनके कारण जो एक माहौल बना है वहां पे कि वो रोजगार देती हैं, वहां उनकी माइनिंग और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री और बहुत सारे उनके वहां कारोबार है। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि तो फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट है गोवा से जी, तो उनको ऐसा लगता है कि एक महिला को देने से एक जो वो उन्होंने भी जो 33% आरक्षण की जो बात की, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना उनकी बात को वहां पर उस पर बल मिलता है। लेकिन अब जो वहां पे जो खास बात है कि 20 सीटें हैं वहां विधानसभा की, उस 20 में से करीबन हम देखें तो 18 सीटें इसमें बीजेपी और उसके जो कोalition लोग हैं उनके पास है।
तो इसलिए बीजेपी का ऐसा लगता है कि इस बार जो पिछली बार उन्होंने सीटें गंवा दी थी, क्या पता उनको वापस मिल जाए, तो इसलिए उन्होंने वहां पर एक महिला कैंडिडेट को उतारा है। तो जैसा कि रोशन जी कह रहे हैं कि एक प्रयोग किया है, देखना है ये प्रयोग कितना सफल होता है। गोवा के बाद अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल संवाददाता संजीव। संजीव, स्वागत है आपका। जी आनंद, नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, 30 मार्च तक नाम वापस लेने की भी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान पर हैं और जिन पर मतदाताओं की नजर है? आनंद, जैसा आपने बताया भी कि 6 सीट पहले चरण में चुनाव होने, इनमें सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा की सीट है। और अगर उम्मीदवारों की बात करें तो कुल मिला के 88 उम्मीदवार अभी मैदान में है। 19 अप्रैल को चुनाव होंगे यहाँ। और उम्मीदवारों में जैसे कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका बेटा नकुल नाथ है। हमारे पूर्व मतलब जो केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, वो एक उम्मीदवार है, पुरानी सांसद है उसी सीट से हिमाद्री सिंह है। तो मोटे तौर पर तो ये 2-3 उम्मीदवार हैं। और सबसे ज्यादा कैंडिडेट अभी जबलपुर में है, करीब 19 है, शहडोल में है 10 कैंडिडेट है। और पहले चरण का चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। अब तक स्थानीय नेता ही इसमें सक्रिय थे, लेकिन अब जैसे जो प्रोग्राम हम लोग के पास आ रहे हैं उसके हिसाब से राजनाथ सिंह के आने का बन रहा है। 6 अप्रैल को जेपी नड्डा आ सकते हैं, 2 अप्रैल को स्मृति ईरानी का नाम भी है प्रचार में शामिल होने के लिए। जी आनंद। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 7 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी चल रही है। आपके पास क्या जानकारी है, कितने उम्मीदवारों ने इन सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया है और क्या माहौल चल रहा है? सेकेंड फेज में दूसरे चरण में 7 सीट है, जैसा आपने भी बताया। बैतूल, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीट है। खजुराहो सीट कांग्रेस ने अपने एलाय जो सहयोगी है समाजवादी पार्टी को दे दी है। अभी तक इन 7 सीटों पे 6 नामांकन भरे गए हैं, चूंकि आज रविवार है और कल भी 1 अप्रैल के कारण 2 दिन नामांकन बंद रहेगा, उसके बाद फिर शुरू होगा। तो अब इसमें जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट है जो अब तक सामने आ चुके हैं दोनों ही पार्टी की तरफ से, तो और जिन्होंने नामांकन भरे उसमें देखें तो भाजपा की तरफ से दर्शन सिंह चौधरी है, होशंगाबाद से उम्मीदवार है, उन्होंने भर दिया है। बैतूल से दुर्गादास उइके हैं जो सांसद भी हैं। सतना से गणेश सिंह हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन जमा कर दिया है। राहुल सिंह ने दमोह से नामांकन भरा है। कंकर मुंजारे बीएसपी से खड़े हुए हैं बालाघाट से, उन्होंने भी भरा है। एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, हमारे साथ श्रोताओं को भी अच्छा लगे। कंकर मुंजारे बीएसपी के चुनाव टिकट से है और उनकी पत्नी कांग्रेस की विधायक है। तो वो एक ही घर से 2 पार्टियों का चुनाव प्रचार हो रहा है, तो इसको लेके थोड़ी सी कुछ ऐसी चर्चाएं भी चली थी। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि भाई आप जाके इस दौरान कहीं और रह लें अपने भाई के घर में, किसी घर में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी कोई बात ना हो। और दूसरा एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पहले और दूसरे चरण में कि कई उम्मीदवार जो है, जो हमेशा होता है चुनाव में, हम लोग देखते हैं कि मिलते जुलते नामों वाले उम्मीदवार उतार देते हैं निर्दलीय के तौर पे, ताकि जो मुख्य उम्मीदवार है उनके नाम को लेकर कंफ्यूजन हो। जी आनंद। जी संजीव, यही लोकतंत्र की रोचकता भी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And we are slipping into a short break once again. We'll be back shortly. लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। रोशन जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, कुल मिलाकर 29 सीट है मध्य प्रदेश में, और सिर्फ एक सीट जो छिंदवाड़ा की है वो कांग्रेस ने पिछले बार जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई थी। इस बार वहां भी संकट। देखिए, जैसा आपने कहा 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास है, और जो पहला चरण है उसमें ही 1 सीट है जो कांग्रेस के पास है। अब उसमें जो आपने पिछले 1 महीने का अगर आप घटनाक्रम देखें तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन फिर वो बात नहीं बनी या क्या हुआ, फिर वापस चले गए। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हम विधानसभा के चुनाव देखें, जिस तरह से बंपर जीत बीजेपी को हुई, 156 सीटें जीती हैं, तो इस बार बीजेपी ने टारगेट रखा है कि 29 के 29 जीतने हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे से ये चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो उसमें और तस्वीर स्पष्ट होती जाएंगी। Right. And we also have with us our correspondent from Gangtok,
Dr. Ibomcha Sharma Aribam, and the state, that is Sikkim, is gearing up for the Lok Sabha elections, as well as it is one of the 4 states that will also see elections to the State Legislative Assembly. So, Aribam, can you please update our listeners about the political activities in Sikkim? Altogether, 14 candidates including Dinesh Chandra Nepal of BJP, Gopal Shetty of Congress, Indrahang Subba of SKM, Premdas Rai of SDF, Bharat Vaishnav of CAP, Kharga Bahadur Rai of Sikkim Republican Party, and 8 independent candidates are fighting for the Lok Sabha seat of Sikkim Parliamentary Constituency. As many as 146 candidates of different political parties and independents are contesting for the 32 seats of the State Assembly. Ruling SKM and SDF have fielded their candidates in all the 32 seats, while BJP is fighting in 31 seats, CAP in 30 and Congress in 18. Incumbent State Chief Minister Prem Singh Tamang and State Legislative Assembly Speaker Arun Kumar Upreti of SKM, former Chief Minister Pawan Kumar Chamling, and SA football player Baisung Bhutia of SDF, ministerial candidate of CAP Ganesh Kumar Rai, and State Unit President of BJP D.R. Thapa are among the prominent candidates for the State Assembly election. And Roshanji, how do you view Sikkim? Because it's a very beautiful state and it is known for environment protection, and also we have seen that it is some kind of a huge majority kind of state where sometimes there are either 1 or 2 opposition MLAs in the Vidhan Sabha. देखिए, अभी सिक्किम में पहले SKM और BJP दोनों का गठबंधन था, लेकिन चुनाव से पहले वो अलग अलग हो गए। जो SDF जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो 2019 में चुनाव हार गई। उसके जो 17 विधायक थे उसमें से 10 BJP को चले गए थे और 2 SKM में शामिल हो गए थे। बाद में जब 2 बाई इलेक्शन हुए तो वो BJP की जीत गए। तो इस बार दोनों में फाइटिंग है, जो SKM और BJP। अगर इसमें से जिनका ये भी कहना कि अगर चुनाव के बाद की क्या स्थितियां होती हैं कि क्या पता फिर दोनों मिलकर चुनाव जीत सकते हैं, मतलब दोनों चुनाव के बाद फिर वहां उनकी गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन SDF के साथ वहां संकट है, क्योंकि उनके जो नेता हैं चामलिंग, क्योंकि वो लगातार सीएम हैं और वहां उनकी पार्टी को ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति वहां पार्टी बन गया है, तो इसलिए वहां के विधायक इधर उधर गए हैं, तो इसलिए वहां उनकी पार्टी में संकट है। और इन दोनों में तो जो भी जीते, हो सकता है कि चुनाव के बाद फिर दोनों एक साथ हो जाए। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने वहां गठबंधन तोड़ा। बीजेपी, जैसा आपने भी कहा कि वो चुनाव बाद गठबंधन कर सकते हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। कुछ ऐसी बात आ रही है कि सीटों को लेकर शायद सहमति नहीं बनी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी अपना जनाधार बढ़ा रही है वहां, क्योंकि उनकी जो 12 सीटें अभी हैं जो उनके पास विधायक, वो दूसरी पार्टियों के हैं, अपने नहीं है। तो अगर इस बार चुनाव में अपनी पार्टी के कितने विधायक जीत सकते हैं, इसलिए वो अपना आधार बढ़ा रही है। जैसा आपने अरुणाचल में देखा कि जब वो लोग बीजेपी में आए थे तो उसके बाद बीजेपी ने वहां सबसे ज्यादा मेजोरिटी ली थी और वहां 41 सीटें जीती थी। और इस बार वहां विधानसभा चुनाव हो रहा है तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो इस बार सिक्किम में भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो अगर उनकी सीटें आएंगी तो वो फिर ये कह सकते हैं कि हमारी भी सिक्किम में हमारा जनाधार है। Roshan ji, before we wind up briefly, can you tell us about the contradiction that CPM and Congress are together in Bengal, but they are fighting against each other in Kerala? देखिए, यही बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि केरल में दोनों पिछली बार एक साथ थे, लेकिन इस बार जब वायनाड से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपना पर्चा भरा तो उन्होंने उनका विरोध किया कि आप यहां मत लड़िए, आप कहीं और जाइए। लेकिन अब दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट कर दिए तो दोनों में वहां लड़ाई है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में जब दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो उनको दिक्कत हो रही है कि एक तरफ आप लड़ रहे हैं आपस में, एक तरफ आपकी दोस्ती हो रही है। Roshan ji, you discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so very much. धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे संवाददाताओं और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com. With this, we conclude this program. लोक निर्णय 2024